Okay. Morning, children. Today is 7th of December. Morning. Okay. And today is Monday. Let us start with the class. Okay. A closer look the gonds. Today we will start from here. The board is wet. A closer look. Okay. The gonds. Let us start with this. Lesson 7. History. As far as the this chapter is concerned, we have started the chapter with the discussion related to the tribal community residing in different parts of our country, and today we will try to study the gonds. As far as the gonds are concerned, we know that the gonds, they are the largest tribe. Okay, ठीक है ना? They are the largest tribe of our country. See, the gonds. अभी भी बोर्ड गीला है, लिख नहीं रहा है. Let the board dry. Okay, by the time it gets dried up, we will do some reading and try to understand from the book itself. So Jay, read. Do the reading, beta. The gonds. The Gonds a closer look the Gonds. Hmm. The Gonds live in a vast forested region called Gondwana or country inhabited by Gonds. Hmm. They practiced shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan has its own Raja or Rai. Hmm. About the time that the power king of the Delhi Sultans were declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama, a history of Akbar's region, रीन mentions the रीन रीन Gond पिछले kingdom. पिछले क्लास में भी ये मिस्टेक हुआ था, अनन्या ने किया था. हाँ, रीन है, रीजन नहीं है. REIGN, रीन. शासनकाल. Then mentions the Gond kingdom of गाड़ा कतंगा. Gharakatana, Gharakatanga that has 17,000 villagers. The administrative system of this kingdom was becoming centralized. The kingdom was divided into gharas. Each गढ़ गढ़. gharas was gad. Each Each gad गढ़ was was. controlled by a particular Gond clan. Hmm. This was further divided into units of 84 villages called 84. Chaurasi. Yes. Chaurasi was subdivided into Barhots. barhots which were made up of 12 villages each. Okay, The thank you. emergence of Thank you, large beta. Okay, so what we saw that the Gonds, okay, where did the Gonds live? The Gonds, okay, lived in a vast, okay, forested land. In a vast, okay, forested land called Gondwana. ये हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, एक बार मैं रिकैप करवा रही हूँ. लैंड कॉल्ड गोंडवाना. ओके, तो ये लोग यहाँ गोंडवाना में ये लोग निवास करते थे. ठीक है ना? और हम क्या देख रहे हैं कि इनका एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था है. ओके, वो केंद्र से जो है ऑपरेट कर रही है. हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो जो गॉन्ड किंगडम है, ठीक है ना, दिस इज द गॉन्ड किंगडम एज अ होल. ओके, हाउ मेनी विलेजेस आर देयर? देयर आर 70,000 विलेजेस. ठीक है ना? पूरे गॉन्ड किंगडम में जो है लगभग 70,000 गांव है. अब इन 70,000 गांव को हम देख रहे हैं कि फर्दर इनको डिवाइड कर दिया जा रहा है. ओके, फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू व्हाट? दे आर डिवाइडेड इनटू गढ़. ओके, ठीक है ना? एक एक गढ़ में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है. ओके, अब इस एक गढ़ में, ओके, इन वन गढ़ हाउ मेनी स्मॉलर यूनिट्स वेर देयर? अगर हम स्मॉल यूनिट्स पकड़े तो एक गढ़ में जो है 84 गांव हुआ करते थे. ठीक है, 84 विलेजेस. ओके, नाउ दिस 84 विलेजेस, सपोजिंग मान लो ये एक विलेज का हिस्सा है. ठीक है ना? ओके, तो ये देखो, यहाँ पे जो है क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 विलेज मिला के जो है एक बरहोत तैयार हो रहा था. ओके,
Now this 84 villages, it was further subdivided into, okay, Barhot, comprising how many villages? 7 villages. तो अगर हम on the whole, अगर हम निकालने का प्रयास करें कि कितने बरहोत्स थे, okay, on the kingdom, जो गॉन्ड किंगडम था उसमें कितने बरहोत्स थे, तो अगर हम पता करने की कोशिश करेंगे तो हमें 10,000 बरहोत्स मिलेंगे, ओके, क्योंकि एक बरहोत जो है 7 गांव का था, okay, one single barhot comprised of 7. So how many barhots were there? There were, okay, 10,000 barhots. So this is how, so सबसे smallest unit क्या था? सबसे smallest unit था barhot, okay, और एक गढ़ को एक ट्राइब कंट्रोल कर रहा था, वन सिंगल ट्राइब वाज, ओके, कंट्रोलिंग वन गढ़। दैट मीन्स एक ट्राइब जो है 84 गांव को ऑपरेट कर रहा था। 84 गांव का जो व्यवस्था थी, 84 गांव की वो व्यवस्था जो थी वो एक जो है ट्राइब जो है वो लेके आगे बढ़ रही थी। सो व्हाट वी सी, ओके, दिस गॉन्ड्स दे हैड अ वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये ट्राइबल्स होते हुए भी, ट्राइबल्स होने के बावजूद भी अक्सर ट्राइबल्स को इलिटरेट माना जाता है, बैकवर्ड माना जाता है, लेकिन देखिए ये ट्राइबल कम्युनिटी, ओके, ये हमारे देश की सबसे, ओके, बड़ी ट्राइब है, ओके, द गॉन्ड्स आर द लार्जेस्ट ट्राइब्स, ओके, आर द लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली इनकी संख्या जो है सबसे ज्यादा है हमारे देश में, ठीक है। एंड व्हाट वी सी विद पैसेज ऑफ टाइम, हम क्या देख रहे हैं, हर वो ट्राइब जो है, ओके, हम देख रहे हैं कि वो राजपूत बनने की चाह रखता है। अब ये राजपूत कैसे बनते हैं? इन द yesterday I went through the, okay, there are some videos that have been uploaded on YouTube related to Rani Durgavati, and through that I came to know many things related to Rani Durgavati. अब यहाँ पे जो है हम आपको YouTube नहीं करा सकते हैं क्योंकि उसमें जो है साउंड नहीं आता है, इसमें जो है स्पीकर काम नहीं करता है, म्यूट में आपको सुनना पड़ेगा, तो इट्स यूजलेस। Now see, the emergence of large states changed the nature of Gaunt society. They are basically equal society, okay, gradually got divided into unequal social classes. Brahmanas received land grants from the Gaunt Rajas and became more influential. तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वो जो है, ओके, अपनी नियम के अनुसार, अपने ट्रेडिशंस के अनुसार, कस्टम्स के अनुसार उनको ऑर्गेनाइज किया गया था। The tribal society had no influence, Varna had no influence as far as tribal society was concerned. But with passage of time, हम क्या देख रहे हैं? With passage of time, we see that with the help of the Brahmanas, okay, many tribes they become part of the what? The ruling classes. Okay? If you go through your chapter, आप अपने ही चैप्टर में देख सकते हैं, पेज नंबर 97 में देखो, ये जो महिला है, महिला का जो चित्र दिया गया है उसके ठीक बगल में आपका दिया गया है, देखो, विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणास मेनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। सो व्हाट वी सी, among the tribes there was no caste system, there was no division on the basis of the varna, but now Yes, ma'am. with the help of the brahmanas we see they are becoming part of the caste system, and leading tribal families are joining the ruling classes, ठीक है ना। तो जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज हैं वो रूलिंग क्लासेस को ज्वाइन करने लग रही है, और बहुत सारे जो डोमिनेंट ट्राइब्स हैं पंजाब के, सिंध के, पंजाब में आप गखर्स को पा सकते हैं, ठीक है ना, देन यू हैव द गद्दीज, ओके, मेनी डिफरेंट ट्राइब्स आर देयर, ओके, सिंध एंड नॉर्थ वेस्टर्न, दे आर विद पैसेज ऑफ टाइम दे आर अडॉप्टिंग इस्लाम, वो इस्लाम धर्म का जो है अनुसरण करने लग रहे हैं लोग। और शुरू से हमें पता है कि ये जो ट्राइबल सोसाइटीज है इनका कोई धर्म नहीं था, ये लोग एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को पूजा करते थे, माउंटेन्स की पूजा करते थे, अपने जो है, ओके, नेचर के जो है ये लोग भक्त थे, नेचर के में, नेचर ही इनका, प्रकृति ही इनकी सब कुछ थी, ओके। Now what we see, they're basically equal society got gradually got divided into unequal social classes. Brahmanas received land grants from Gond Raja and became more influential. The Gond chiefs now wish to be recognized as Rajputs. Okay, और ये राजपूत बनने की चाह इनमें थी, इसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि जो गौंड राजा है, ओके, अमन दास, उन्होंने कौन सी टाइटल ली थी? द गौंड किंग संग्राम सा ओके, संग्राम
the Gond king, okay, Aman Das, assumed the title of Sangram Sangram Shah. Shah. Okay, assumed the title of, ठीक है ना, संग्राम शाह। और ये जानते हो रानी दुर्गावती के साथ जो है इनके बेटे की शादी कैसे होती है? ओके, ये जो है राजपूत बनना चाहते हैं और ये क्या करते हैं? ओके, रानी दुर्गावती के जो पिता है चंदेल राजा, चंदेल राजपूत राजा महोबा के, ठीक है ना, उनके साथ ये युद्ध करते हैं और उनको युद्ध में हरा देते हैं, ठीक है। और रानी दुर्गावती जो है वो शुरू से ही जो है इनको, इनके साथ इनका प्रेम प्रसंग रहता है, ठीक है ना। वो दलपत राय से शुरू से ही प्रेम कर रही होती हैं और उनके साथ वो शादी करना चाहती हैं, ठीक है ना। लेकिन रानी दुर्गावती के पिता जो है इस शादी के खिलाफ रहते हैं, तो संग्राम शाह जो है उनके साथ युद्ध होता है रानी दुर्गावती के पिता का। और दोनों युद्ध जब करते हैं तो दुर्गावती के जो पिता है वो हार जाते हैं युद्ध, और उनको जो है अपनी बेटी को जो है, ठीक है ना, अपनी बेटी की शादी दलपत राय के साथ करनी पड़ती है। ओके, now what we see that his son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salbahan, okay, the Chandel Rajput Raja of Mahoba, ठीक है ना, सलबहन की पुत्री रहती है। और ये रानी दुर्गावती जो है बाल्यकाल से ही जो है इनको युद्ध करना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब बहुत इनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो शुरू से ही जो है एक नॉर्मल लड़की के रूप में इनका जो है परवरिश नहीं होता है, एज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो एक वीरांगना का जीवन जीती हैं, ठीक है। और जब शादी होती है तो कुछ कारणवश हम देखते हैं कि ओके, दलपत राय जो है वो बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड यस बेटा, आदित्य कुछ कह रहे हो? So what we see, okay, after the death of Dalpat Rai, after the death of Dalpat Rai, Rani Durgavati, she, okay, takes over the administration and she rules the kingdom, okay, she rules the kingdom। उस समय जो है इनके बेटे की आयु जो है लगभग, ओके, आप देखेंगे 5 साल है उनके बेटे की आयु, वीर नारायण। और वो जो है क्या करती हैं, ठीक है ना, बहुत ही माने वीरांगना है वो, सी दलपत राय, ओके, was in love with, ओके, रानी दुर्गावती, ठीक है। एंड सो ही मैरीज हर, ठीक है ना, सो ही मैरिड हर। बट व्हाट वी सी, he died an early death, he died and he died very early। and okay, Rani Durgavati ruled the kingdom for 4 years, ठीक है ना, 4 साल तक जो है वो, ओके, for 4 years ruled the kingdom for 4 years, kingdom for 4 years। हमारे देश में वीरांगनाओं की कमी नहीं है, ओके। इतिहास अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हम देखेंगे हमारे देश में बहुत सारी वीरांगनाओं का जो है जन्म हुआ और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। तो रानी दुर्गावती भी जो है अपने पुत्र के बिहाफ पे जो है 4 वर्षों तक जो है वो शासनकाल करती हैं और बहुत अच्छे से जो है शासन करती हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि मुगल जो बादशाह हैं अकबर, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो जो है अपने एक कमांडर इन चीफ को, आई थिंक इट इज असफ जहां, एज फार एज आई रिमेम्बर, ही सेंड्स असफ जहां टू टेक ओवर द किंगडम ऑफ, okay, the Gonds। Now what we see that in 1565, okay, the Mughal forces under Asaf Jah, he was the commander in chief, attacked Gada Katanga। A strong resistance was put by Rani Durgavati, she was defeated and preferred to die rather than surrender। her son too died fighting soon after, okay, उनके लड़की की भी जो है मृत्यु हो जाती है। और रानी दुर्गावती की अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक वीरांगना की मौत मरती है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे कि
रानी लक्ष्मीबाई अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर देती हैं और दुश्मन को जो है स्पर्श करने नहीं देती हैं, ठीक उसी प्रकार रानी दुर्गावती क्या करती हैं, रानी दुर्गावती के जो है पहले बाजू में उनके तीर लगती है, तो उस तीर को वो स्वयं निकाल देती हैं। उसके बाद फिर जो है उनको जो है गले के पास तीर लगती है। ओके, ठीक है ना। एक तीर जो है उनके आंख को भेद देती है, तो वो उस तीर को भी निकाल देती हैं, एक आंख से वो अंधी हो जाती हैं, ठीक है ना। युद्ध के दौरान ही उनके आंख में तीर लगती है, और जो तीसरा तीर होता है वो उनके गले में लगता है, ठीक है ना। तो अपने जो सैनिक हैं उनसे वो कहती हैं कि आप मेरे गले को काट दीजिए, ठीक है। लेकिन कोई भी सैनिक जो है तैयार नहीं होता है रानी के गले को काटने के लिए। ओके, तो वो अपने ही तलवार से जो है अपने गले को जो है धड़ से अलग कर देती हैं। और आज के डेट में भी हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में, ठीक है ना, वहां पे जो है रानी दुर्गावती की जो है सम्मान देते हैं, गौंड समुदाय के लोग जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उनको जो है एक वीरांगना के रूप में जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। Gadakatanga was a rich state. It earned much wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty, treasure of precious coins and elephants. They annexed part of the kingdom and granted the rest of Chandra Shah, an uncle of Bir Narayan. तो हमारे देश में जो है गद्दारों की कोई कमी नहीं है। इन गद्दारों की वजह से ही जो है एक से एक पराक्रमी शासक जो है वो युद्ध हार जाते हैं। ओके, और ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि आज उनके साथ उन्होंने अगर जो दुश्मन है उनका साथ दिया है, तो कल को उनके साथ भी वही होगा। ओके, but still we see that Chandra Shah, he supports the Mughal forces, and as such he gets a part of the booty. Okay, despite the fall of Gadha Katanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and the Marathas. जब भी कोई समुदाय होता है, जब भी कोई कम्युनिटी होती है, अगर उसका कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होगा, तो आप उस कम्युनिटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अपनी एक पहचान बनाए। There should be some strong leadership, as it was given by Rani Durgavati, okay, for the Gonds. So this is all that is we have related to the Gonds. Okay, many stories are available on the net related to Rani Durgavati. Rani Durgavati के बारे में है, okay, और भी बहुत सारी महिलाओं के Yes, बारे में ma'am. है, ठीक है ना। मुगल बादशाह के बारे में भी एक वीडियो था, उसमें जो है मुगल बादशाह अकबर के बारे में दिया गया था कि उन्हीं के राज्य में, ठीक है ना, उन्हीं के राज्य में जो न्यूमरस स्टोरीज इन हिस्ट्रीज, ओके, प्रूविंग द ब्रेवरी एंड द करेज ऑफ द राजपूत प्रिंसेस। टुडे इज योर कामेश्वर तिवारी बर्थडे। आपके कामेश्वर तिवारी सर का आज जन्म दिवस है, सो वी आर गेटिंग स्वीट्स फॉर दैट। ओके, लेट अस विश हिम हैप्पी बर्थडे। The Ahoms, have a look children. The Ahoms migrated to the Brahmaputra valley from the present day Myanmar in the 13th century. So we can write this. The Ahoms, okay, the Ahoms migrated, ठीक है ना, migrated to Brahmaputra valley. What do you know about this river? Brahmaputra नदी की सोर्स कहाँ से है? हाँ, इसका स्रोत कहाँ से है ब्रह्मपुत्र नदी का? हाँ, कोई बता सकता है? हाँ, nobody. Avilasha? हाँ, the source of Brahmaputra river. हिमालय। ना बेटा, कैलाश, ठीक है ना। What is the source of the Yamuna river? Which glacier? Which glacier is the? गंगा का तो सबको पता है, गंगोत्री ग्लेशियर है। Can you tell me the source of the Yamuna river? हाँ, बिंदिशा? यमुनोत्री। Yes, it is the Yamunotri glacier. हाँ, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना के फॉरवर्ड कर रही हो मैम को, ठीक है ना। पता है कि मैम को कितना जल्दी गुस्सा आता है।
फिर भी बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना के भेज रही हो. एंड आई डोंट नो हु दैट चाइल्ड वाज. मैम हम नहीं भेजे थे. कौन भेजा था? मैम मेरी दीदी. हाँ तो क्यों भेजी थी दीदी? अब बताओ, ग्रुप में शेयर कर दें हैं? तो फिर बच्चे क्या कहेंगे बताओ? हैं? चलो ठीक है, इतना चलता है. Okay, now see children, there was some of you has sent me an audio related to the shifting cultivation. आपका ऑडियो एकदम सही है, आपने जो कुछ भी उसमें रिकॉर्ड करके भेजा एकदम सही है. We people are not getting time to response, give you the response, but the audio was correct, the answer was correct, whoever it was. Okay, नाम लिख दिया करो बेटा, कोई भी कुछ अगर भेजे ना तो अपना नाम लिख दिया करो ताकि हम पहचान सकें कि कौन भेज रहा है. क्योंकि एक ही टॉपिक जो है तीनों क्लासेस में चल रहे हैं, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ओके, so we see that the homes migrated to the Brahmaputra valley from present day Myanmar in 13th century. Okay, so 13वीं सदी में जो है ये लोग जो है, ठीक है ना, इस क्षेत्र में जो है ये लोग आते हैं, ब्रह्मपुत्र की घाटियों में ये लोग प्रवेश करते हैं. और पहले जो है ये म्यांमार में जो है निवास कर रहे होते हैं, ठीक है ना. They created a new state by suppressing the older political system of the Bhuiyans. Okay, अब भूयांस किसको कहा जाता है? लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना. ड्यूरिंग द 16th century they annexed the kingdoms of Chutias and of Khoch Hajo and subjugated many other tribes. The Homs built a state, large state, and for this they used firearms as early as 1530s. तो हमें ये पता है कि मुगल्स जो हैं वो कैनन्स इंडिया में लेके आए थे. They were the first rulers to bring cannons. Cannons क्या होता है? What do you mean by cannons? Jay? तोप. Yes. Okay. मैम Yes. तोप लेके आने वाले पहले शासक जो थे वो मुगल्स थे. Okay. बाबर. Yes, it was Babur, okay, who brought along with him cannons to defeat Ibrahim Lodi. Okay, and what we see that, okay, as far as the Ahoms are concerned, they are using firearms as early as 1530s. By 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons. Gunpowder का मतलब क्या होता है? हाँ? बारूद. Yes. बारूद. Yes. Okay. Built a state as early as 1530s. Okay, so we see that they were able to build a state as early as 1530s, and they were the people, okay, they used firearms, okay, gunpowder and cannons. Okay, तो ठीक है ना, इन सब चीजों का जो है ये लोग प्रयोग करते हैं अपने युद्ध में. ओके, now see children, however the Ahoms faced many invasions from the southwest. In 1662 the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. Despite their brave defense, the Ahoms were defeated, but direct control, okay, Mughal control over the region could not last long. ओके, तो देखो अहोम्स के ऊपर जो है मुगलों का शासन जो है वो स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ओके दिया मुगलों को. ओके, एंड वी सी दैट द Mughals, they could not control that region for long. The Ahom state depended upon forced labor. Okay, forced labor called Payaks. Okay, so Payaks who are बंधुआ मजदूर. Payaks किनको कहा जाता है? Okay, the laborers. Okay, who are forced to do work. इनसे जो है मजबूरन, इनसे जो है जबरन काम करवाया जाता है. अब ये जो अहोम शासन प्रशासन था, अहोम जो राज्य था, ठीक है ना, इसमें एक ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि हर उस बालिक व्यक्ति को जो है हर बालिक व्यक्ति को जो है जो राज्य है राजा है उसके लिए जो है युद्ध करना था, ठीक है ना. और जब वो युद्ध नहीं कर रहे होते थे तो उनको अलग कार्यों में जो है एंगेज करके रखा जाता था. देखो कौन से कार्य. अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन. व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? सेंसस से हम क्या समझते हैं? जनगणना.
कितने साल पे करवाई जाती है? हम 10 साल में एक बार। हमारे देश 10 की years। हमारे देश की मैम जनगणना 10 कब years। करवाई जाएगी? अगली जनगणना कब होगी हमारे देश की? मैम 2021 में। 2021 2021 में। जनगणना में क्या किया जाता है? What happens in a census? मैम काउंट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। Yes, all detailed information regarding the population of the country is achieved through census. Okay, and name the organization that conducts the census. Which is the organization? हाँ, अभिलाषा? सरकार की वो कौन सी संस्था है, कौन सी संगठन है जो जनगणना करवाती है? हाँ? Nobody knows the answer. हैं? बाहर है मेरे बच्चों, हैं? आज सुनो, 2 दिन बाद भूल जाओ। हाँ? किसी को नहीं पता है? शुक्र मनाओ तुम लोग की स्कूल नहीं खुला है, नहीं तो 1-2 को मारते जरूर। मैम सेंसस मिनिस्टर। नो बेटा, इट इज NSSO। NSSO है कि NSO है? क्या है? बोलो। NSSO। NSSO। Check me if I am wrong. National Statistical Organization. Okay? NSSA NSSO NSO. Okay? ठीक है ना? N National Statistical Organization है कि NSSO है? You will have to find out and tell me. Okay? I will not tell everything. Tell me if it is right. If it is not right, what is the right answer? मैं बताई थी आप लोगों को जब सिविक्स पढ़ा रही थी, तब मैंने बताया था। देखो, a census of the population was taken. Each village had to send a number of pikes by rotation. ठीक है ना? रोटेशन में जो है इन बंधुआ मजदूरों को जो है भेजा जाता था। ओके, पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज। जहाँ पे आबादी ज्यादा थी, वहां से जो है जो लोग थे उनको उन क्षेत्रों में भेजा जाता था जहाँ पे आबादी कम थी। Okay, Ahom clans were thus broken up. By the first half of 17th century, the administration became quite centralized. Okay, figure 7 में आप देख सकते हैं कान में पहनने वाले ये ornaments हैं, कोबोई नागा ट्राइब के, मणिपुर की महिलाएं ये पहनती हैं। Okay, almost all adult males served in the army during war, and at other times they were engaged in building dams, irrigation system, and other public works. तो देखो, ये जो पुरुष थे, बालिग पुरुष थे राज्य के, उनको जो है युद्ध में जाना होता था। ओके, और जब युद्ध नहीं हो रहा होता था, बाकी समय में जो है उनको डैम के निर्माण में सहायता करनी पड़ती थी, सिंचाई व्यवस्था में हाथ बटाना पड़ता था, और बहुत सारे जो है जन सेवा के कार्य हैं उनमें हाथ बटाना पड़ता था। The Ahoms introduced new methods of rice cultivation. So this is an important point. Okay, the Ahoms introduced new methods of rice cultivation. What is the difference between झूम cultivation and shifting cultivation? झूम में और शिफ्टिंग में क्या अंतर है? बताए थे आप लोगों को? हाँ? Anybody? अनन्या? अनन्या सिंह? Yes, ma'am. What is the difference between झूम cultivation and shifting cultivation? पता है आपको? दीक्षा? दीक्षा चौबे? Are you there? Yes, ma'am. What is the difference बेटा? Yes, ma'am. बताओ, झूम कल्टीवेशन में और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या अंतर था? मैम
Ma'am, zoom cultivation is also known as ma'am slash and burn cultivation. मैम Yes, and ये burn. मैम क्रॉप्स को ग्रोन करके ना मैम क्रॉप्स को ग्रोन करके मैम पहले वो पूरा ट्री को काट दिया जाता था फिर सुनो सुनो जय, शायद आप लोगों को नहीं बताया है। हाँ बोलो। मैम जूम कल्टीवेशन में पहले बर्न किया जाता था क्लियर। Listen children, okay, in both the cultivations, in both zoom cultivation and shifting cultivation, the trees are cut, okay, they are burned and the crops are grown in the ashes, okay, the process is just the same. But as far as zoom cultivation is concerned, zoom cultivation और shifting cultivation में अंतर यही था कि shifting cultivation में जो है field को तैयार किया जाता था, the field was prepared for sowing seeds, ओके बीज रोपण के लिए जो है ओके फील्ड को तैयार किया जाता था। और जो झूम कल्टीवेशन है उसमें सीड्स को जो है स्कैटर किया जाता था एंड द प्रोसेस वाज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। आई होप यू विल रिमेंबर नाउ। अब आपको याद रहेगा, ठीक है ना, सीड्स को जो है स्कैटर किया जाता था, ओके, एंड द प्रोसेस वाज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ओके आपको सिविक्स में जब मैंने ब्रॉडकास्टिंग पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था, आप लोग भूल जाते हो। Okay, the only difference between zoom cultivation and shifting cultivation is this, that in zoom cultivation the seeds are scattered and in shifting the seeds are sowed. Okay, ठीक है ना? Now see children, originally the Ahoms, have a look, Ahom society was divided into clans or khels. There were very few caste of artisans, so artisans in the Ahom areas came from the adjoining kingdoms. Okay, a khel often controlled several villages. The peasant was given land by his village community and even the king could not take it away without the community's consent. Okay, so it was a community owned property resource, ठीक है ना। अगर जो किसान है उसको अगर राजा ने अनुदान दे दिया है, जमीन का अनुदान, जमीन को अनुदान के रूप में दे दिया है, तो उसको उससे कोई नहीं ले सकता था, ठीक है ना। Originally, the Ahoms worshipped their own tribal gods. During the first half of 17th century, however, the influence of Brahmins increased. So when we compare the Ahoms with that of the Gonds, what we see in both the societies, we see that the Brahmanas, they became influential with the passage of time. Okay. So we see the Brahmanas influenced, okay, both the Gonds and the Ahoms. Okay. दोनों में हम देख रहे हैं कि अहोम्स को और गॉन्ड्स को जो है ओके ये ब्राह्मण लोग जो है प्रभावित कर रहे हैं और इसका नतीजा हो रहा है कि ये जो अहोम राजा हैं और जो गौंड राजा हैं इनकी सहायता से जो है वो रूलिंग क्लासेस में एंटर कर लेते हैं और कास्ट सिस्टम का जो है हिस्सा बन जाते हैं समय के साथ। ओके The influence of Brahmanas increased. Temples and Brahmanas were granted land by the king in the reign of Sib Singh. Okay, Sib Singh के शासन काल में Hinduism became the predominant religion. So what we see as far as the Gonds were concerned, we saw that some of them they adopted Islam. Okay, and as far as the Ahoms are concerned, Hinduism became prominent. But the Ahom kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. तो वो अपने traditional culture को, अपने traditional customs को लेके आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने नए धर्मों का अनुसरण करना शुरू किया, लेकिन अपने जो पुराने रीति रिवाज थे उनको उन्होंने नहीं त्यागा। Ahom society was very sophisticated. Sophisticated means it was very modern. Poets and scholars were given land grants. Theater was encouraged. रंगमंच को प्रोत्साहित किया गया. Okay, important works of Sanskrit were translated into the local language. स्थानीय भाषा में जो है बहुत सारे संस्कृत में लिखे गए कार्यों को जो है okay, उनका अनुवाद किया गया. See, historical works known as Buranjis were also written first in the home language and then in Assami. Okay, तो पहले जो है अहोम भाषा में लिखा गया इसको और उसके बाद जो है असामी भाषा में लिखा गया. असामी भाषा जो है कुछ हद तक जो है ठीक है बंगाली से बंगाली से मिलता जुलता होता है असामी भाषा. ओके, आज के बच्चे जो है प्रादेशिक भाषा की मूवी देखते ही नहीं है. हमारे समय में खाली नेशनल चैनल हुआ करता था और हम लोग जो है हर संडे को एक रीजनल मूवी देखते थे, समटाइम्स फ्रॉम गुजरात, समटाइम्स फ्रॉम पंजाब, एंड दैट्स वी वर एबल टू
know about the multilingual, okay, society that was there in our country. But nowadays children, they are more interested in, okay, the channels, okay, other than the national channel. Now see, considerable social changes took place in the subcontinent during the period we have been examining, okay. Varna based society and tribal people constantly interacted with each other. So who are the people belonging to the Varna based society? Yes, Avilasha, who are the people belonging to the Varna based society? Ma'am, tribal peoples. ना बेटा, ये तो बाद में हुआ ना, शुरुआत में तो क्षत्रिय